ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਰੱਕ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਚੜਾਈ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਮੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਔਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਭੱਜਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਆਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਟਰੱਕ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 150 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 2-2 ਦਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। 2 ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ 1 ਮਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ 1 ਮਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2 ਕਿਰਪਾਨ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੇਅਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਡੀ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਸੰਤ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਖੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਟਰਾਲਾ ਜਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜਾ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ। ਇਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦਾਰੂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 1 ਮਿਆਨ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਕਿਰਪਾਨ ਹੀ ਪਊਗੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਦਾਰੂ ਕਿਵੇਂ ਪੀ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਭੰਡਿਆ, ਮਰਿਆ ਵੀ ਭੰਡਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਲਟੀ ਭਰੀ ਪਈ ਆ ਬਲੱਡ ਦੀ, ਕਰ ਲਓ ਚੈੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ। ਪਰ
ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਦਾਗ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਆ। ਸਾਡੀ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਬੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲੂ, ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲੂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉੱਤੇ ਧੌਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੇਦਾਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਮਿਲਿਆ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹਨਾਮਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਯੋਧੇ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰੋ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਈ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਰਸ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਹੀ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ, ਆਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਆਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਖਾ ਗਏ, ਚੁੱਪਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ। ਟਿੱਬਰ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਕਸਰ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਦੇਖੋ ਖਾਣਾ ਆਖਰੀ ਖਾਣਾ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਣਜੀਤ ਭਾਜੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦੋ ਸੀ ਦੋ ਸੀਗੇ। ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਸ ਸਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਦਿੱਲੀ 2 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਭਾਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਆਖਰੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੁਰਮੀਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਯਾਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਚੱਲ कैमरे
ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਗੱਡੀ ਪਰਲੇ ਬਨੇ ਜੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਨੈਕਟ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲੱਗਣੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। क्या हम भी सर अपना आईडी लगा लें आपको ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮਲੂਸ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਣੀ, ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕ ਜੋ ਯਾਰ। ठीक है आशीष आशीष ठीक है सर आप एक बार अपना नाम बता देंगे आप यार आप नहीं मेरा बाद में कर लेना। मैं कुछ मेरा नाम दलजीत कलसी है। हमारे साथ अमरप्रीत जी हैं, गुरमीत सिंह जी बुक्कनवाल जी हैं, हरप्रीत सिंह जी देवबन साहब हैं और बाबा बख्शीश जी हैं और बाकी सारे वारिस पंजाब के संस्था की तरफ से, खालसा एक संस्था की तरफ से और बाकी सब दीप भाई को तैयार करने वाले लोग यहाँ पे आए हैं। आज दीप भाई दिल्ली से आके पंजाबी च गल करना ज़्यादा वधिया। हाँ जी। ਆਪਾਂ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ। ਔਰ ਇਹ ਮਨੂਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਤੇ ਆਹੀ ਕਮਰਾ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੀ ਵੜ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦਾ ਸੀ। ਮੱਖੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੂਨ ਪਿਆ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਮੀਤ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੱਟੇ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਸਮਝੋ। ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹੋ, ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਊਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਵਾਟਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ 100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਦੀਪ
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ में बताते हैं अगर ये बड़ा हिंदी में अलग से आपको बता देते हैं। ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਦਾਂ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ जैसे भाई साहब ने बताया वैसे मोर ओवर ये पूरी जो वीडियोग्राफी गाड़ी जिस जो एक्सीडेंट की लोकेशन थी वहाँ से विद इन फ्यू मिनट्स में उठा ली गई है और अगर वो गाड़ी उठाई है उसकी प्रॉपरली वीडियोग्राफी होगी और हम सभी जो उनके भाई उनके प्यार करने वाले जो यहाँ पे पहुँचे हैं रातों रात पहुँचे हैं और हम चाहते हैं कि वो भी जनतक की जाए। सर क्या आप लोगों को सर कुछ जैसा आपने जैसा आपने बताया कि स्पॉट को देखकर भी लग रहा है कि इस तरीके से ये मिसहैपनिंग नहीं हो सकती हादसा नहीं है या किसी पर शक भी है परिवार से भी आप उनके भाई भी आए हैं बात हुई होगी किसी उनको भी उतना ही मालूम है जो हमें आके यहाँ पे मालूम पड़ा है और जैसे मैंने बताया कि एक प्रॉपरली प्रोसेस होता है एक प्रोसीजर होता है अगर जिस प्रोसीजर के तहत उस गाड़ी को उठाया गया वहाँ से और उस जो वीडियोग्राफी हुई है वो भी पब्लिक की जानी चाहिए ताकि जो हमारे मन में शक है वो क्लियर हो सके। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹੋ अगर ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट है जो नॉर्मल प्रोसीजर है तो इतनी पुलिस किसकी सेफ्टी के लिए क्या इनको किसी तरह खतरा है जो इतनी भारी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि जो भी है उसकी निरपेक्ष जांच हो पता चले अगर एक्सीडेंट है हम उस एक्सीडेंट को भी मानेंगे अगर नहीं है तो अगर कुछ हुआ है कोई साजिश है तो हमारी क्लैरिटी मिलनी चाहिए क्योंकि पंजाब के लोग बहुत प्यार करते हैं उस लोगों को वही जैसे जैसे ये भाई साहब भी बता रहे हैं कि नॉर्मल एक्सीडेंट में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं इंसिडेंट पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ होता है उस लोकेशन पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं अगर आज गाड़ी उठाई गई है क्या उसकी वीडियोग्राफी हुई है अगर हुई है वो पब्लिक किया जाए और विद इन फ्यू मिनट्स क्यों मतलब ऐसे गाड़ी उठाएगी विद इन फ्यू मिनट्स ये एकदम इतनी जल्दी एक्शन क्यों हुआ उस एक्शन की वजह से सभी के मन में शक है वो शक क्लियर करना चाहिए। बॉडी से पूरा कोई क्रैश नहीं होगा और सिर्फ ये मतलब वो सबसे बड़ी बात है कि ये पोजीशन में उसकी डेड बॉडी मिली है इस पोजीशन में कभी भी डेड बॉडी अगर ड्राइविंग आप इस पोजीशन पे आप कभी आ ही नहीं सकते कितनी भी पीछे रहो आप बनानी है ये नहीं है और बिना बैंड के कभी ड्राइव नहीं करता था और इस पोजीशन में डेड बॉडी कभी आ ही नहीं सकती और विद इन 5 to 10 मिनट्स वहाँ से गाड़ी भी रिमूव हो गई है सब कुछ हो गया और बहुत बड़ा सवाल है ये सबके लिए कि आखिर ऐसा क्यों किया और क्यों हुआ और इसका प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा और इसकी जांच होनी बनती है। और जो आप अगर गाड़ी की टक्कर देखोगे तो अगला हिस्सा गाड़ी के पिछली सीट तक आ गया बीच में एक आदमी बैठा हुआ है और बॉडी में कोई स्क्रैच नहीं है ये कैसे हो गया। तो आप सर कुछ डिमांड करते हैं कि कुछ स्पेशल टीम बने प्रॉपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए देखो ये स्टेट की जिम्मेवारी बनती है अगर कोई पब्लिक फिगर कोई ऐसा चाहने वाला लोगों का कोई जा रहा है सो उसके लिए कोई भी शक हमारे मन में आ रहा है तो वो क्लैरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम जस्ट एक नॉर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं जो एक नॉर्मल प्रोसेस प्रोसीजर होना चाहिए वही हम मांग है हमारी कि उसकी क्लैरिटी पब्लिक को देनी चाहिए क्योंकि आज जैसे भाई साहब ने बताया 50-100 गाड़ियाँ अभी निकल चुकी हैं और पूरे सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर आप देखोगे ट्रेंडिंग पे दीप सिद्धू का नाम चल रहा है सो लोग जाने वाले हैं और उनको क्लैरिटी की बहुत डिमांड है और हम चाहते हैं कि ये क्लैरिटी हमें जल्द से जल्द मिले। एक बात हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं ये दीप भाई किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता था एग्जैक्टली और कोई ड्रिंक नहीं करता था उसके ब्लड में आज भी सिंपल ले लो कोई नशा 1% और ड्रिंक नहीं आई। एक चैनल वो भी चला रहा था कि उसने आज तक चैनल चला रहा था कि उसने ड्रिंक किया हुआ था ये प्रोपोगंडा नहीं चलाना चाहिए। हमारा भाई गया है और मीडिया प्रोपोगंडा चलाएगा तो हमें वो अच्छा नहीं लगता वो तो जख्म पे नम छिड़कने वाली बात होती है प्रॉपर उसकी जांच हो यदि वो
कुदरती मौत है तो हम एक्सेप्ट करते हैं। ये थोड़ी ना है कि हम किसी पे थोपना चाहते हैं, लेकिन जांच होनी चाहिए, हमें फिर सेटिस्फेक्शन बताया यही गया है कि हॉस्पिटल बाई एम्बुलेंस ही आई है। कोई भी जब मिसहैपनिंग होती है तो उसको बाई एम्बुलेंस ही लेकराया जाता है किसी वजह से, और 1.5 घंटा 2 घंटे उसको निकालने में लगे हैं। ये भी मालूम है, ये पता लगा है वहाँ से कि 1.5-2 घंटा वो बोर्ड अंदर ही रहे हैं गाड़ी में। तब तक वो वहाँ हमें तो लगता है वहाँ पर खत्म हो जाता है, उसको उठाने में ब्रेकअप की गई है। देखो इतनी देरी क्यों, इतनी देरी क्यों? किसी की जान चली जाती है देरी से, हम कहते हैं देरी का मिल गया। एक आदमी तड़प के 1.5 घंटा गाड़ी में मर जाता है, हम कहते हैं देरी का मिल गया। ये तो प्रशासन की भी तो चूक है। ठीक है, किसी से भी किसी के ऊपर भी मिसहैपनिंग हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। हम इस देश के वासी हैं, तो हमें कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। ये ऐसा नहीं है कि अभी एक्सीडेंट हुआ अभी लेकर हम वहाँ पर हॉस्पिटल चले जाए, आदमी को बचा सकते हैं, लेकिन उसमें की बात नहीं। हाँ जी, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ? ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬੋਡੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਔਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਅੱਗਿਓਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਫਿਸ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਡੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਪਈ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੋਟਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਓਬਰਾਇਸ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਟਲ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਉਹੀ ਸੜਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੱਟੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਲੋਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਬੰਦਾ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਭਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਲੜਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੁਛ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਪ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਆਉਣਗੇ ਕੱਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ, ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ, BJP ਦਾ ਬੰਦਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਲਾਂਟਡ ਬੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੈ ਲਓ ਬਈ ਸਬੂਤ। ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਘਟਾਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਯਤੀਮ ਜੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਹੇ। ਪੂਰਾ ਜਹਾਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਤੁਸੀਂ जो लोग इतने आना चाहते, दर्दनाक मौत हो जाती है, उनका जो शव है इसी हॉस्पिटल में पड़ा है। इनके तमाम जो चाहने वाले हैं, जो तमाम उनके पारिवारिक सदस्य हैं, वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। उनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन किसी को भी हजम नहीं हो रहा, किसी को भी पता नहीं चल पा रहा कि आखिरकार कैसे ये हादसा हुआ है। क्योंकि मौके पर हम भी होकर आए हैं, हमने भी देखा कि ट्राला जो है सड़क के बताया जा रहा है कि साइड में खड़ा था और गाड़ी जो है उसके पीछे से जो है जा टकराती है। स्कॉर्पियो गाड़ी दीप सिद्धू चला रहे थे, उनके साथ उनकी एक दोस्त भी बैठी थी और ड्राइवर साइड से जो ज्यादा है गाड़ी ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें जो है दीप सिद्धू को काफी ज्यादा चोटें हैं, जिस कारण जो है उनकी मौत हो गई है, दुखद मौत हो गई है। इनके भाई इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, कब आपको जानकारी मिली जो दीप सिद्धू है, कहाँ से कहाँ जा रहे थे और कितने बजे आप यहाँ पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो नमस्कार सबको। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मैं उनका एक किस्म से मुहाफिज रहा हूं और मैं उनका दोस्त रहा हूं, लेकिन भाई जो हैं वो अंदर हैं, पुलिस की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। हमें भी शाम को जैसे पता लगा तो हम लोग अमरगढ़ में थे, वहाँ पे इलेक्शन है तो उसमें हम लोग कंपेनिंग कर रहे थे। तो हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग था। पहले तो मुझे ये पता चला कि भाई को चोट लगी है और भाई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही बॉडी, तो मुझे लगा कि कुछ चोट लग जाए, अभी कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है, कोई झटका लगता है तो दिमाग थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस थोड़ी चली जाती है, तो बेहोश हो गया होगा भाई। उतना सीरियसली मैंने नहीं लिया, लेकिन थोड़ी देर में फिर से बात की कि अभी कैसा है, थोड़ा सीरियस लगा। हम लोग भाग के इधर पहुँचे, यहाँ जब तक यहाँ पे आए तब तक हमारे भाई हैं सोनू चौधरी, वो उनको लेके आए, तब तक डॉक्टर ने यहाँ पे उनको फिर मृत घोषित किया। तो गुरुग्राम से कहाँ पंजाब की तरफ ही जा रहे थे और जो उनके साथ एक महिला दोस्त हैं, क्या वो इस तरह की खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया में, क्योंकि वो मंगेतर हैं और शादी करना चाहते थे उनसे, ऐसी कोई भी बात है? नहीं, वो उनका एक पर्सनल मसला है। वो उनकी फ्रेंड थी, वो काफ़ी टाइम से वो लोग साथ में हैं। और एक मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि दीप भाई किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करते थे, आज तक कभी उन्होंने कोई नशा नहीं किया। और टीवी चैनल, नेशनल मीडिया शुरू हो जाते हैं, वो एक किरदार कुशी उनकी कर रहे हैं कि उन्होंने नशा किया हुआ था या शराब पी रखी थी। ऐसा कोई नशा भाई करते ही नहीं थे। तो क्या लगता है आपको सर कि एक्सीडेंट ही है, क्योंकि एक्सप्रेसवे है, वहाँ पर इस तरह से भारी स्पीड वाले जो व्हीकल्स हैं चलते रहते हैं और अचानक बताया जा रहा है कि एक बड़ा कंटेनर जो ट्रक था वो खराब हो गया, जिस कारण जो है पीछे से आ रही गाड़ी उसमें जा बजी और जिस कारण जो उनकी मौत हो गई है? आपको लगता है, आपने देखिएगा मौके पे गए थे, आप मुझे कोई बता दो। नहीं, बहुत सारे सवाल हैं। जिस तरह से वो एक्सीडेंट हुआ है वो एक सवाल है, फिर एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि गाड़ी बिल्कुल पिचक जाती है। अब यही मैं अगर कैमरे में भी दिखाऊं कि गाड़ी यहाँ से ट्रक की जो बॉडी है वो यहाँ पहुँची हुई है, इसके अंदर कोई अगर इंसान हो उसका क्या बॉडी के क्या कुछ हो सकता है, लेकिन बॉडी जो सामने पड़ी है उसके अंदर
उसमें कोई स्क्रैच तक नहीं है, सिर्फ माथे में एक चोट लगी हुई है उसको। फिर जब हम लोग यहाँ पे आए तो हमने इतनी पुलिस देखी, कोई अटैक होने वाला है हॉस्पिटल में, इतने सारा पुलिस का CAA स्टाफ यहाँ पे है। मैंने सुना है 2-3 DSP साहब हैं यहाँ पे और SSP साहब हैं, मुझे मालूम नहीं है रैंक हरियाणा के कैसे होते हैं, सीनियर लोग यहाँ पे आए हुए हैं। किस लिए? बंदा तो अभी चला गया, डेड बॉडी है, और हम लोग यहाँ पे आके कोई क्या करने वाले हैं? इतनी पुलिस क्यों है? क्यों वो इतनी जल्दी से वहाँ से हटा दिए गए? बहुत सारे सवाल हैं जिनका हम चाहते हैं कि इसकी एक इंक्वायरी हो प्रॉपर तरीके से और सच्चाई सामने। हालांकि सर हम भी मौके पर होकर आए हैं और देखा कि वहाँ पर फॉरेंसिक टीमें भी मौके पर पहुंची, जो रेंज के बड़े अधिकारी थे, सीनियर अधिकारी थे, SP लेवल के अधिकारी थे, वो भी मौके पर पहुंचे। हो सकता है कि बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि दीप सिद्धू अपने आप में एक सेलिब्रिटी जरूर थे, पंजाब के युवाओं की धड़कन जरूर थे, काफ़ी युवा उनको पसंद करते हैं और सबसे बड़े किसान आंदोलन में भी उनकी भूमिका जरूर रही। हालांकि 26 जनवरी में जो हिंसा हुई, उन्होंने झंडा फहराया, पर्चा उनके खिलाफ दर्ज हुआ कि हिंसा फैलाने में वो आगे थे, अरेस्ट हुए, वो काफ़ी समय फरार रहे। तो इस चीज़ को भी आप लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ से जोड़कर आप चाह रहे हैं कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? नहीं, मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूँगा इस बारे में। आप भी समझदार हैं, पब्लिक भी समझदार है, कुछ ना कुछ तो है। वो कईयों की आंख में एक पत्थर बन के रड़कता था, उसको हिंदी में मेरे को प्रॉपर बोलना नहीं आता, आंख में चुभता तो था, वो कईयों के चुभता था, सरकारों को भी चुभता था, एजेंसियों को भी चुभता था, और उसका एक बहुत बड़ा आधार था, उसके कहने से बहुत फ़र्क पड़ता था, यूथ उसके कहने पे चलता था। तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ तो इसके अंदर मेरे को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। उस दौरान हमें याद है कि 26 जनवरी का जब ये मामला हुआ था तो एक पुरानी फोटो सनी देओल जी हैं जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनके साथ एक फोटो अमित शाह जी के साथ या बीजेपी के दूसरे नेता हैं उनके साथ एक जोड़कर दिखाई गई थी। हाँ, वो तो कई बार उसके लिए भाई क्लैरिटी दे चुके हैं। एक टाइम था जब वो सनी पाजी के साथ ही होते थे, उनके सनी सुपर साउंड में ही तकरीबन ज़्यादातर होते थे। हरप्रीत देवगन पाजी हैं, हम लोग कई बार सनी सुपर साउंड में ही उनको मिले, सनी पाजी को भी मिले। तो एक टाइम था वो तो उन्होंने कभी नकारा ही नहीं कि मैं, जब सनी पाजी गुरदासपुर से इलेक्शन लड़ रहे थे तो सारा इलेक्शन दीप भाई संभाल रहे थे, पूरी दुनिया देख रही थी, कोई वो छुप के या वैसे नहीं थे। तो एक उनकी एक नेड़ता उसके साथ अमित शाह और मोदी के साथ उनकी एक टाइम पे थी। वो सब छोड़ के जब उनको लगा कि यार किसानों के साथ गलत हो रहा है, कि जो फूड इंडस्ट्री है इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो इसके खिलाफ वो लड़े। उसके लिए बेशक सनी देओल छूटे, उसके लिए फिर मोदी से, अमित शाह से रिश्ते छूटे, तो सब कुछ छूटा। आपका नाम सर? दलजीत कलसी। दलजीत कलसी हैं, आप देख सकते हैं उनके बहुत ही अच्छे मित्र भी रहे दीप सिद्धू के, उनके दूसरे भी जो तमाम साथी है वो सारे यहाँ पर इस समय सोनीपत का जो खरखोदा हॉस्पिटल है यहाँ पर, क्योंकि दीप सिद्धू जी का जो शव है वो यहीं पर पड़ा है और जानकारी मिली कि शायद सुबह जो है या तो इनको सोनीपत के सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, क्योंकि जिला जो है पोस्टमार्टम हो, डॉक्टरों की टीम द्वारा ये पोस्टमार्टम हो जिसकी पूरी वीडियोग्राफी हो। हालांकि मौके पर हम पहुंचकर आए हैं, देखा हमने गाड़ी हालांकि वहीं पर खड़ी है, फोरेंसिक टीमों ने मामले की छानबीन की है, तमाम उनके जो साथी हैं उनके साथ हमेशा रहे हैं। किसान आंदोलन में सिंगू बॉर्डर भी आप जाते थे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? इस तरह के आप भी जानकार हैं, उनके लगातार संपर्क में रहते थे, कैसे हादसा हुआ, कितने बजे आपको ये जानकारी लगी हादसे की? देखिए, मेरे को तकरीबन 8:30 बजे हादसे की जानकारी मिली। हम कुरुक्षेत्र थे और वहाँ से जब हादसे की जानकारी मिली तो हम सीधा इधर आए हैं। तो तब तो जानकारी मिली थी कि कुछ चोटें आई हैं, पर जैसे जैसे रास्ते में आए तो पता लगा कि चोट काफ़ी गंभीर है और मामला गंभीर है। तो हम यही चाहते हैं कि ड्राइविंग सीट की तरफ अगर टक्कर लगी है, जिस बड़े ट्रॉले को टक्कर मारी गई है, जाहिर सी बात है वो सड़क के मध्य में या फिर सीधी तरफ होगा। इसीलिए सीधे जो ड्राइविंग सीट है वो सबसे ज़्यादा सुविधा है। अगर ट्रॉला सड़क के किनारे खड़ा होता तो लेफ्ट हैंड साइड पे टक्कर लगनी थी, और लेकिन टक्कर राइट हैंड साइड पे के साथ दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। कर रही है, पूरे तीनों ट्रेन को जो है रिट्रीट किया जाएगा, इसके लिए तमाम तैयारी कर ली गई है। कितनी रफ्तार से गाड़ी आ रही होगी
भाइयों ये देखो, ये गाड़ी आगे से आधी बिल्कुल खत्म हो रखी है और इसमें एक भी इंसान के बचने की कोई संभावना नहीं है। ये कहने लग रहे कि एक इंसान, एक लड़की जो है वो बच गई है। ये देखो कितनी बड़ी ये साजिश रची गई है। ड्राइविंग सीट की तरफ अगर टक्कर लगी है, जिस बड़े ट्रॉले को टक्कर मारी गई है, जाहिर सी बात है वो सड़क के बीचों बीच या फिर सीधी तरफ होगा। इसीलिए सीधे जो ड्राइविंग सीट है वो सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। अगर ट्रॉला सड़क के किनारे खड़ा होता तो लेफ्ट हैंड साइड पे टक्कर लगनी थी, और लेकिन टक्कर राइट हैंड साइड के साथ बिजली की तरफ से जा रहे हैं। कर रही है, पूरे तीनों ट्रेन को जो है रिट्रीट किया जाएगा। इसके लिए तमाम तैयारी कर ली गई है। कितनी रफ्तार से गाड़ी आ रही होगी। भाइयों ये देखो, ये गाड़ी आगे से आधी बिल्कुल खत्म हो रखी है और इसमें एक भी इंसान के बचने की कोई संभावना नहीं है। ये कहने लग रहे कि एक इंसान, एक लड़की जो है वो बच गई है। ये देखो कितनी बड़ी ये साजिश रची गई है। आधी गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई है। जिस तरीके से इस गाड़ी की टक्कर हुई है, गाड़ी की हालत है, हर कोई अंदाजा लगा सकता है भयानक ये टक्कर रही होगी, मौत हो गई है। हालांकि क्या ये सिर्फ दुर्घटना थी या कोई साजिश, इससे अभी इनकार नहीं किया जा सकता और हर एंगल से पुलिस भी जांच कर रही है। जबकि कुछ दीप सिद्धू को जानने वाले हैं, उनसे हम पूछते हैं। ये बताइए, आप जानते हैं दीप सिद्धू? हाँ बिल्कुल भाई, हम अपना अच्छा दोस्त भी था, हम बॉर्डर पे भी साथ रहे और अच्छी उनकी भूमिका रही है। बहुत अच्छे हमारे दोस्त थे, मिलनसार थे, बहुत अच्छे इंसान थे। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे कुछ पता है? देखो दिल्ली से आके वो घर जाने लगे थे और ये देखो ना, ये गाड़ी बिल्कुल आधी खत्म हो गई है। ये हादसे में आप ये अंदाज़ा लगाओ कि आधी गाड़ी खत्म होने के बाद उसके बचने के कोई चांस नहीं बचते। एक भी बंदा इसमें बच नहीं सकता। उसके बाद भी ये देखो ना कुछ तो इसमें बड़ी वो हुई है, आधी गाड़ी खत्म हो गई। अब इसमें कोई साजिश लग रही है? क्या लग रहा है कि सड़क हादसा है? बिल्कुल ये साजिश है। ये देखो बिल्कुल आधी गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई। ट्रक ये देखो, अगर जब जाने लग रहे हैं लेफ्ट साइड में खड़े हुए। सिद्धू जो है पंजाब के चुनाव में लगातार प्रचार भी कर रहे थे और काफ़ी बड़े जो है किसान आंदोलन के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें बड़े नेता के तौर पर उभर रहे थे और ऐसे में अचानक उनकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। तो उसको लेकर अब सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं और शायद इसीलिए हरियाणा पुलिस किसी भी मामले को हल्की नहीं। एक भाई कहने लग रहा है, भाई पीछे से मारा की साजिश कैसे हो सकती है? नहीं, ये बता कर रोड पे जाने लग रहे हैं तो अगर टक्कर पीछे से लगती है तो वो ड्राइवर साइड से कैसे लग जाएगी? ड्राइवर साइड से सब लगेगी ना, चाहे तो ट्रक दूसरे रोड पे खड़ा हो तभी तो ड्राइवर साइड से लगेगी। और रही बात ये भाई, जिस तरह से मार रखी है गाड़ी, आधी गाड़ी खत्म हो रखी है, तो उसमें एक बंदे के बचने के चांस नहीं है। वाहनों की तो किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है। ऐसे में यहाँ पर बहुत तेजी से जो वाहन है वो दौड़ते हैं और अगर कोई भी शख्स अपनी गाड़ी को या ट्रॉला को ऊपर के बीचों बीच खड़ा कर देगा तो ऐसे में जांच कर रही है। भाई ये एक रूल है इस देश के अंदर बन गया, जो सिस्टम के खिलाफ लड़ेगा उसको इस तरह से इस चीज़ों का शिकार होना पड़ेगा। ये देखो, जब गाड़ी बिल्कुल आधी गाड़ी खत्म हो रखी है, आधी गाड़ी खत्म होने के बाद उसमें गाड़ी में आधी गाड़ी में बचने के कोई चांस नहीं है। बिल्कुल आधी गाड़ी बिल्कुल खत्म, उसमें चिड़िया भी नहीं बच सकती। आगे बैठी बिल्कुल गाड़ी खत्म है, उसमें वो लड़की को जो बताने लग रहे बिल्कुल बच गई है। ये देखो कितना बड़ा साजिश रची गई है यहाँ पे। और जब अगर एक लाइन में हम चलने लग रहे हैं तो लेफ्ट साइड से लगने के चांस होंगे ना, क्योंकि रोड पे चलने लग रहे हैं। राइट साइड लगना मतलब ट्रक या तो दूसरे रोड पे खड़ा तो फिर दूसरा ओवरटेक करके दूसरी गाड़ी के साइड में लगा के और स्पीड करके दूसरी गाड़ी से रोड से नीचे उतरवाएगा जब उस गाड़ी में भिड़ी है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जितने मेरे साथी देखने लग रहे हो, ये
हर जगह, हर चैनल तक, हर जगह तक ये चीजें होनी चाहिए कि ये देखो ना, कल हो सके इस गाड़ी को कुछ ना कुछ इसको चेंज किया जाए। और भी बहुत सारी चीजें देश के अंदर पहले भी हुई हैं, तो आप सब भाइयों को इसलिए दिखाने लग रहे हैं। रात के 12:50 जो हम बताते हैं 1 बजने वाला है। रात के 1 बजने वाले हैं। यहाँ पे इतना सब कुछ कैसे कैसे खड़ा करना, तैयार करवाना, इतना सब कुछ करना। देखो इसमें दो बात तो बिल्कुल साफ है। एक तो आधी गाड़ी बिल्कुल खत्म है, तो खत्म है तो वो लड़की बची कैसे, क्योंकि उसमें आगे पीछे बचने की कोई जगह, कहीं भी कोई चांस नहीं है। दूसरी बात ये, चलती गाड़ी अगर रोड के ऊपर चलने लग रही है तो वो लगेगी तो सीधे रोड पे तो लेफ्ट साइड से ही लग सकती है। अगर राइट साइड में तब लगेगी जब ट्रक या कोई वाहन रॉन्ग साइड में या दूसरी तरफ चला होगा। अब ये बताने लगे खड़े ट्रक में लगी है। मैं भाइयों को देखो ये ट्रक दिखाई दूं, ये जितने अभी आपको गाड़ी दिखा देता हूँ कैसे बिल्कुल गाड़ी कैसे खत्म हो रखी है। और उसमें बचने के चांस आप खुद जितने भाई हैं देख लेना, इसमें से कैसे बच सकते हैं। भाई टक्कर है ये बताने लग रहे कि खड़े ट्रक में लगी है, खड़े हुए ट्रक में लगी है। और खड़े हुए ट्रक में लग के गाड़ी बिल्कुल दूसरे रोड पे आ गई। देखो टक्कर उस रोड पे लगी है सामने वहाँ, और ट्रक ये खड़ा है। ये ट्रक है जिसके पीछे पुलिस खड़ी है, ये ट्रक। और ये भी इस रोड पे आए हुए बीच वाले पे गाड़ी, यहाँ वाले पे, इस पे चलते चलते। टोटली प्लान है ये, बिल्कुल इसमें साजिश है। इसके फोटो वगैरह हमने गाड़ी के पीछे के अंदर के वीडियो वगैरह सब ले लिए गए। सभी भाइयों को जय जवान जय किसान। ड्राइविंग सीट की तरफ अगर टक्कर लगी है, जिस बड़े ट्रॉले को टक्कर मारी गई है, जाहिर सी बात है वो सड़क के किनारे में या फिर सीधी तरफ होगा। इसीलिए सीधे जो ड्राइविंग सीट है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अगर ट्रॉला सड़क के किनारे खड़ा होता तो लेफ्ट हैंड साइड पे टक्कर लगनी थी, और लेकिन टक्कर राइट हैंड साइड के साथ दिल्ली की तरफ जा रहे हैं।